स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस रवि रंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे आपको ले चलते हैं। On a particular platform, this toolkit has a particular section in this document which says that it is titled Prior Action Plan, and it says that digital strikes have to be conducted through hashtags on and before 26th of January. Number 2, tweet storms from 23rd January onwards. Number 3, physical action on the 26th of January. And number 4, watch out or join farmers march into Delhi and back to the borders. So this is a particular action plan which has been delineated in this toolkit, which was uploaded on one of the handles on a particular social media platform. Now this is also in the public domain. Many of you are aware of this particular thing. It is also being mentioned by a lot of media houses. I've also seen some of the television channels which have mentioned about this. But what is important here is that the action plan which has been delineated in this particular toolkit, if you go by the unfolding of events, including the violence of the 26th January, it reveals a copycat execution of the action plan. Now that is something which is a matter of concern for Delhi Police. It definitely, the intention of the creators of this toolkit is to create disharmony amongst various social, religious and cultural groups, and also encourage disaffection and ill will against Government of India. It also aims at, and it says so, waging social, cultural and economic war against Government of India. Now this particular toolkit has come to our notice, and taking cognizance of this toolkit, Delhi Police has registered a case under section 124A, 153A, 153 and 120B IPC. That means spreading disaffection against Government of India and also creating disharmony amongst various social, cultural and religious groups. 120B for a planned conspiracy to execute such a plan. Now we have handed over, after registration of this case, we have handed over the investigation to the cyber cell, and which will be conducting further investigation into the case. So can you please tell us about the section once again? So I once again mentioned the section. It is 124A IPC, which is basically spreading disaffection against the Government of India. It's regarding sedition. And 153A is promoting ill will and hatred amongst various communities on social, cultural and religious grounds. Same is 153, and 120B is for criminal conspiracy to wage such a give shape to such a plan. So has Greta Thunberg been named Has Greta Thunberg been named in the FIR? So we have not named anybody in the FIR. It is only against the creators of the toolkit, which is a matter of investigation, and Delhi Police will be investigating that case. But that particular toolkit was treated from a particular wrong. Can you please name that particular toolkit? See, you people are aware of that, so I don't want to name it here. Please name that, because that is very important. That's very important. We need somebody Who has put out that? I think most of you are aware of this. Let me first brief the press in Hindi. I think they also want to, and then I will come back to the question part. Just give me 1 minute. आप सभी को मालूम है दोस्तों कि दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है, और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और इसी
कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से, इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। ठीक, थैंक यू। तो स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस को आप सुन रहे थे, टूल किट के बारे में उन्होंने जानकारी दी और साथ ही साथ ये भी बताया कि जैसा कुछ डॉक्यूमेंट में था वैसा ही प्लान का एग्जीक्यूशन हुआ। जैसा उन्होंने बताया कि किस तरीके से ट्विटर पर या फिर उन्होंने पर्टिकुलरली टूल किट का नाम लिया, किस तरीके से वहां पर भ्रांतियां फैलाई गई और वही चीज एग्जीक्यूशन में देखी गई, चाहे वो 26 जनवरी की घटना हो और उसका मार्च वॉच करने की बात हो। ये सब कुछ बताया स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस ने। हालांकि उन्होंने कहा कि एफआईआर जो दर्ज की गई है, केस जो दर्ज किया गया उसमें किसी का पर्टिकुलरली नाम नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ केस दर्ज किया गया है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइबर क्राइम के द्वारा की जाएगी। तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि टूल किट, ये शब्द बार बार स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल किया और उन्होंने बताया कि जैसा कुछ डॉक्यूमेंट में था सेम वैसा ही एग्जीक्यूशन हुआ इस पूरे समय के दरमियान। साथ ही साथ उन्होंने जो केस दर्ज किया उसमें किसी का नाम लेने से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप सभी अवेयर हैं कि कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। ग्रेटा थर्नबर्ग को लेकर उनसे सवाल भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। इन्वेस्टिगेशन अब साइबर पुलिस के हाथ में।